Islamic banking is a concept which is different from that of commercial banks in the world. Although Islamic banking is getting popularity, and even in those countries which are not Islamic countries, Islamic banking branches are available. Finance students need to understand what Islamic banking is, or in other words, if I say that what is the Islamic financial system is, because it is actually increasing gradually everywhere, not only in the world but also in our country, Pakistan. An Islamic bank is a bank which actually operates according to the rules and regulations of Islam, that is called Sharia. So, in an Islamic bank, what we see is that all activities are Sharia compliant. That is, the activities are somewhat the same, that is, borrowing and lending and providing various facilities to the depositors and the borrowers. But these facilities are actually according to the rules and regulations of Islam. What is the key element that actually differentiates an Islamic bank from any other commercial bank? It is the element of riba, सूद, जिसको हम उर्दू ज़बान के अंदर कहते हैं. अंग्रेज़ी में इसके लिए बहुत से अल्फाज हैं. टाइम्स वी कॉल इट इंटरेस्ट, विच इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड. बट जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि कौन सी चीज़ इस्लामिक होगी या नहीं होगी, उसके लिए जो लफ्ज़ कुरान के अंदर मौजूद है, जिसको इस्लामिक बैंकिंग के अंदर मेयार बनाया जाता है, वो रिबा का लफ्ज़ है. रिबा, if we call it sood or interest as a synonym, then it is actually a fixed rate of return that is charged on any commodity which is lent by a person or an organization which is not a usable commodity but a consumable commodity. यानी कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी कमोडिटी जो यूजेबल नहीं है, कंज्यूमेबल है, अगर उसके ऊपर एक फिक्स्ड रिटर्न चार्ज किया जाए तो उसको हम रिबा कहते हैं. यानी अगर मैं किसी को अपना घर इस्तेमाल करने के लिए देता हूँ और उसके ऊपर कुछ रिटर्न चार्ज करता हूँ, तो वो किराया या रेंट है और वो सूद या रिबा की डेफिनेशन में नहीं आता. इसी तरह अगर मैं किसी को अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल या कोई मशीन किराए पर देता हूँ, क्योंकि ये तमाम यूजेबल कमोडिटीज़ हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जाता है, खर्च नहीं किया जाता. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू लुक एट दोज कमोडिटीज़ विच आर कंज्यूमेबल कमोडिटीज़, जैसे कि गंदम है या ऑयल है या चीनी है या चावल है या रुपया है, इफ़ वी लेंड एनी ऑफ सच कमोडिटी विच इज़ अ कंज्यूमेबल कमोडिटी, तो बोरो करने वाला उसको खर्च करके ख़त्म कर देता है और उसको दोबारा से उस कमोडिटी को जनरेट करना होता है. और इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, इस्लामिक सिस्टम में ये कहा जाता है कि दिस इज़ एक्सप्लॉयटेशन, और उससे उसके ऊपर मज़ीद मुनाफे का, मज़ीद रिटर्न का तकाजा ना किया जाए. सो रिबा इज़ बेसिकली द की एलिमेंट दैट डिफरेंशिएट्स इस्लामिक banking. Now, if we look at the Islamic banks in Pakistan, there are several banks which are operating, which are Islamic banks, and there are other commercial banks which also have their operations, Islamic banking operations, available for those people who are interested in doing banking through the way of Islam. Every bank has a Sharia board. That Sharia board determines that whatever transaction, whatever borrowing and lending activity is carried on by that bank, whether it is Islamic or it is not. So that board is responsible for determination of a transaction to be Islamic or un-Islamic. The people who are in this Sharia board are actually the scholars, the Islamic scholars, those who are the उलमाए कराम, जो कि इस चीज़ के अंदर बहुत दरक रखते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. न सिर्फ दीन की समझ रखते हैं, बल्कि दुनिया के अंदर होने वाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को भी बखूबी समझते हैं. So everything has to be cleared by that Sharia board.
इस्लामिक बैंकिंग का क्रक्स, जैसे मैंने कहा रिबा इज़ द की एलिमेंट, इसी तरीके से इस्लामिक बैंकिंग इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। यानी इस्लामिक बैंक के अंदर बोरोइंग और लेंडिंग का जो हिसाब किताब है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पे होगा और फिक्स्ड रिटर्न के ऊपर नहीं होगा। ये इस्लामिक बैंक्स को दूसरे बैंक से मुमताज़ करता है। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर मैं कहूँ तो एक बड़ा दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको इंडेक्सेशन कहा जाता है, और स्टूडेंट्स को ये ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए जो इस्लामिक बैंकिंग में दिलचस्पी रखते हैं। इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि जब भी कर्ज की लेन देन हो, बोरोइंग और लेंडिंग हो, तो उसको पैसे के साथ ना नापा जाए बल्कि उसको किसी कमोडिटी के साथ लिंक कर दिया जाए। यानी अगर मैं यूं कहूं कि मैंने आपको 1 लाख रुपया नहीं दिया बल्कि मैंने आपको 10 ग्राम सोना दिया है और मैं आपसे 1 साल बाद 10 ग्राम सोने की कीमत वापस वसूल करूंगा, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को इंडेक्सेशन कहा जाता है। ये भी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जाने के लिए एक तरीका जो है वो माना जाता है। इस्लामिक बैंकिंग के बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत से तरीके हैं जिसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग की जाती है। एंड सम ऑफ द कॉमन नेम्स ऑफ दीज इस्लामिक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर मुशारका। मुशारका इज a transaction where two parties actually invest money and share profit and losses in a stipulated ratio. Then we have mudarba. Mudarba is also an Islamic banking instrument where one person or one party contributes financially and the other party by skills and effort. And whatever profit is earned, that profit is distributed among the two parties in a stipulated ratio. Ijara. Ijara is basically the Islamic form of leasing, where an asset is given as a financing to a person or to a company, and against that, instead of interest, a fixed amount of rent is taken. So, ijara is somewhat similar to leasing, but there are certain terms and conditions which actually uh, differentiate ijara from leasing. And then we have murabaha financing, where an asset, again, if you look at most of these Islamic financing instruments, you would see that here either there is profit loss sharing और देर इज़ सम एसेट बेस। यानी इनके अंदर ये दो बातें आपको अमूमन नज़र आएंगी कि इसमें या तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग हो रही होगी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो किसी फिक्स्ड एसेट बेस के साथ रिलेट करती होंगी। सो इन अ मुराबहा ट्रांजैक्शन व्हाट हैपेंस के एक बैंक या इस्लामिक इंस्टीट्यूशन एक एसेट खरीदता है और उसे मार्कअप के ऊपर, यानी उसके अंदर एक प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड करके उसे दूसरी कंपनी को, दूसरे बिजनेस को सेल कर देता है और ये अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स पर फिर दूसरी कंपनी से रिसीव की जाती है। इस तरह जो बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये फ़ायदा होता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में और किस्तों में पैसा दे सकता है, लेकिन वो जो अमाउंट पे करता है वो मार्क्ड अप अमाउंट है। यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक्स अमाउंट के ऊपर वो एसेट अवेलेबल है तो उसके अंदर x प्लस वाई प्रॉफिट शामिल करके और उसको इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस्लामिक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारे इस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं।